Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the recording for skills at the rate 100 where for 100 days we are bringing for you 100 different speakers from all over the country. The speaker is Preeti Agarwal and we have learned how we can choose our investments wisely. Also, this video is sponsored by Soulful Success Academy by Komal Botra, who is a passionate life and mindset coach. She has trained over 500 plus professionals and individuals who help achieve their full potential. More of them in the link in the description. So now, what are we waiting for? Let's go. Good evening, everyone. Hello to all. And today is the 18th live session for Skills at the Rate 100, where we are trying to do 100 sessions. And today's speaker is very special, Preeti Agarwal. She is the proprietor of Crescent Financial Solutions. So, why we choose the topic? Because financial planning, investment, right investment is the most important thing which all of us ignore. We don't have any formal education on this, and we hear from here and there, and then we tend to lose our money. So we choose this topic so that we can have basic idea how the things can go, how we can choose the right things and all. So thank you, Preeti ji, for accepting our invitation, and over to you, Preeti ji. Yeah, your voice is not yet audible. Your voice is not yet audible. Yeah, Yeah, thank you, Lokesh. yeah. I'm sharing my. Yeah, your screen is visible. Yeah, my screen is visible. Yes. Yes. Can you see the full screen? Yes. Till now, this yes, this PowerPoint slides are there, but slideshow has not started. Now Yeah, it's now, visible. now. Okay, Yes, now great. it's correct. Yeah, good evening, everyone. I am so excited to discuss investment opportunities with you today. Am I audible? Yes, ma'am. Very well. Thank you. So, with 11 years of experience in finance and passion in handling individuals achieving their individual goals, I am confident in my ability to provide you necessary, valuable insights and guidance today. So, just begin with the PPT. A very simple question for you all. I would like all to please reply in chat so that we have an interactive session today. So, what do you do with your money? That is the question. That is why we ask you. We've come for the session. No, there are answers are already available in the screen. Save, spend, or invest. Do nothing. Just keep it in the bank. And Just keep in the bank. It's not even savings. That is why we've come for the session. Okay. So I would just like to say, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Oh, तो आपको क्या करना चाहिए ना whenever you earn something आप are you salaried मंगला जी no, not really. I'm a freelancer. ओके There's फाइन no. तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना जो भी पार्ट अपने को मिलता है पहले ही हम लोग एक पोर्शन अगर सेविंग्स में डाल दे तो सेविंग्स हो जाता है और बाद में करने के चक्कर में ना नाउअडेज देयर आर सो मेनी एप्स लाइक ब्लिंकिट स्विगी एंड ऑल तो बचता ही नहीं है सेव करने के लिए Hmm.
And what's wrong with just saving? If we just save our money, तो inflation just eats up our savings over time. अगर हम लोग 5% ईयरली इन्फ्लेशन भी पकड़ते हैं तो आज के डेट पे जो घर हम लोग 30,000 एक्सपेंसेस में जो मंथली हम लोग का एक्सपेंसेस है इट विल बी अराउंड 80,000 आफ्टर 20 years. So the purchasing power get decreases due to inflation. Again, what does inflation does to our savings? आज की डेट पे सपोज मैं 1 लाख रुपया सेव कर रही हूँ तो what happens? The value of the saving after 20 years it will be around 35,000 if I assume 5% yearly inflation rate. Okay. So what can we do? We can start investing the safeguard against inflation. तो सेविंग सब करते हैं. कोई बोल रहा है कि मैंने घर पे सेव कर रखी है, कोई बोल रहा है मैंने आरडी कर रखी है. तो इज इट द राइट वे टू सेव? सो वी कैन बेनिफिट फ्रॉम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग थ्रू एसआईपी. Everyone of us know about SIP. Hmm. Hmm. Systematic investment plan we can start early so that earlier you start the better. क्या होता है ना, we work hard to earn money, so make the money work hard for you. Compound interest is the eighth wonder in the world. So हम लोग उससे benefit करके ना from saving to we can go to investing so that our money works hard for us. Never depend on single income. Make investment to create a second source. तो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम मे बी यू हैव ए प्रॉपर्टी, तो रेंट भी आपका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है. पर इन म्यूचुअल फंड SWP इज ए गुड सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम. एवरीवन ऑफ अस नो अबाउट SWP. Someone who can say me the full form of SWP, please? Anyone? Is it a something like systematic investment plan something? It is systematic withdrawal plan. Systematic investment Yeah, plan is sorry, SIP is systematic withdrawal systematic. plan. हाँ, yeah, it's Systematic withdrawal withdrawal. plan. SWP is 100 times more powerful than SIP even. क्या होता है ना, आज आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो, आपका SIP सपोज 5,000 10,000 जो भी अमाउंट आप चूज कर रहे हो, यू नेवर आप रिटर्न नहीं जनरेट कर रहे हो उससे. उसके बाद आप 20 years बाद आपका जो SIP 1 से 2 करोड़ का हो गया है, देन वी कैन स्टार्ट टेकिंग SWP. सिस्टमेटिक विड्रॉवेबल प्लान में क्या होता है, वैल्यूएशन जो भी आपकी बन रही है उससे अगर आप 12% तक भी मंथली ले रहे हो तो अमाउंट गेट ऑन इंक्रीजिंग और आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है एज ए रिटायरमेंट फंड. सो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन SWP का. और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आएंगे. तो योर इन्वेस्टमेंट शुड बी सच दैट इट शुड बी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग. क्या होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं भाई मुझे सेविंग्स की क्या जरूरत है. मैक्सिमम वुमेन से कि माय हस्बैंड आर देयर टू टेक केयर ऑफ माय इन्वेस्टमेंट. व्हाई यू डोंट डू योर इन्वेस्टमेंट योरसेल्फ? यू कैन हैव योर ओन गोल्स. छोटे छोटे सपने सबके होते हैं. सपनों के इन्वेस्टमेंट प्लान, वी से SIP है सपनों का इन्वेस्टमेंट प्लान. क्योंकि सपोज यू हैव ए प्लान कि 5 years बाद मुझे यूरोप ट्रिप पे जाना है, तो योर गोल कैन बी ट्रेवल बेस्ड and you can have the goal of purchasing a car for purchasing for education purpose of your children. It can be a dream house and also it can be a retirement plan for your children and also for health. लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस वी विल कम लेटर ऑन बिकॉज उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस अगर है तो वी डोंट नीड much money for it. So next slide is, so what are the various options of investment? Property can be a good investment. Then insurance. In insurance मैं आपको यही बोलूंगी टर्म प्लान एंड हेल्थ इंश्योरेंस ये आप लोगों के पास होनी चाहिए. इफ यू हैव अ टर्म प्लान तो आप ये देखिए कि आपने उसमें जो नेसेसरी डिस्क्लेमर है, अगर आपका कोई हैबिट है कुछ भी है तो प्लीज डिस्क्लोज इट क्लियरली ताकि क्लेम आपको मिले. सेकेंडली आई वुड लाइक टू से इन टर्म प्लान, बहुत जन होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम चाहिए. अगर आप 25 years में एक टर्म प्लान ले रहे हो तो आफ्टर 40 years
40 क्यों 60 इयर्स, क्योंकि 85 इयर्स का जनरली टर्म प्लान हम लोग लेते हैं। एम आई क्लियर अभी तक? यस। अगर आप 85 इयर्स तक का टर्म प्लान ले रहे हो तो विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो आपका 12,000 पड़ रहा है, विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम आपका प्रीमियम 16,000, 12 की जगह 16,000, तो यू आर पेइंग 4,000 एक्स्ट्रा। 4,000 अगर हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 60 इयर्स तक, तो वो 4,000 अगर हम लोग एसआईपी करते हैं 12% भी पकड़ते हैं तो वो 40 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो व्हाई यू गो फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम? तो आई सजेस्ट एवरीवन, डोंट गो फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम। टर्म प्लान कर रहे हो, इट्स प्योरली फॉर फैमिली। You just take a good term plan, and your term plan should be minimum 10 times of your annual income. Suppose कोई 1 लाख अर्न कर रहा है तो 12 लाख के हिसाब से 1,20,00,000 का टर्म प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस। इन हेल्थ इंश्योरेंस ना, ओके, इन हेल्थ इंश्योरेंस आप लोग 4 पॉइंट्स प्लीज ध्यान रखिएगा। फर्स्टली, हेल्थ इंश्योरेंस में ना नो कैपिंग ऑफ रूम रेंट। क्या होता है ना, आप जब एडमिट होते हो आपको बोलते हैं आपको ये रूम मिलेगा वो रूम मिलेगा। वाई? आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो ये बहुत जरूरी है कि आपको जैसी मर्जी जैसा कैबिन रूम चाहिए यू कैन टेक दैट। तो अप टू द सम एश्योर्ड, फर्स्टली। सेकेंडली, आप हेल्थ इंश्योरेंस में ये देखिएगा कि नेटवर्क ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल्स हो, अदरवाइज यू हैव टू पे। अगर आप पे कर पा रहे हो तो व्हाई डू यू रिक्वायर हेल्थ इंश्योरेंस? तो कैशलेस हॉस्पिटल्स का टाइप ज्यादा होना चाहिए। थर्डली, क्या होता है कुछ हेल्थ इंश्योरेंस में एयर एम्बुलेंस नहीं रहता है, दैट इज वेरी नेसेसरी। तो गो फॉर इंश्योरेंस विच ऑल्सो प्रोवाइड यू एयर एम्बुलेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो को पेमेंट। क्या होता है कुछ इंश्योरेंस में आपको 10% पे करना पड़ रहा है या 20% करना पड़ रहा है। तो गो फॉर इंश्योरेंस वेयर ऑल द अमाउंट इज सेटल्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन इन हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ कुछ में कंपनी में क्या होता है ना, देयर इज ए सब लिमिट फॉर आपका इंश्योरेंस में इतना कवरेज मिल रहा है। सपोज देयर इज ए सब लिमिट ऑफ 50,000। अगर आपका सर्जरी का कॉस्ट 1 लाख आ रहा है तो यू विल बी गेटिंग ओनली 50,000। सो go for a health insurance there where there is no co-payment, no sub-limit, and no room rent capping. And of course, you should have emergency fund in your bank account, bank deposits, and mutual fund, of course, and gold. Gold is a very good asset class. Gold क्या होता है ना, it protects us for the from the volatility. तो कोई अगर 50 लाख इन्वेस्ट कर रहा है तो आई विल सजेस्ट कि 10 लाख गोल्ड में होना चाहिए, ताकि वो रिड्यूस द रिस्क इन योर पोर्टफोलियो। गोल्ड मिनिमाइजेस द रिस्क इन योर पोर्टफोलियो, और गोल्ड आज की डेट पे आसमान छू रहा है। And stocks, if you have the knowledge about stocks, then you can definitely have some stocks in your portfolio. Bonds, corporate bonds, and government bonds ले सकते हैं हम लोग। they are make sure that BBB रेटिंग उनका अच्छा हो पेपर्स का, वो देख के आप लोग ले सकते हो। तो make your investments work for you. तो your investment should be such that it provides income when you need it. हमने एसआईपी की है तो जब हमें चाहिए वी कैन टेक सिस्टमेटिक विथड्रॉएबल प्लान, इनकम फ्रॉम द सेम। इट ग्रोज इन वैल्यू एंड अप्रिशिएट ओवर टाइम। इट फाइट इन्फ्लेशन फॉर यू, बी रियलाइजेबल एट लो कॉस्ट। इन म्यूचुअल फंड इज द लोवेस्ट कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। तो एंड इट इज रियलाइजेबल एट फेयर वैल्यू। अगर सपोज आपने इन्वेस्ट किया, आपको पैसा का रिक्वायरमेंट हुआ, इन दैट फंड you get in the next working day, and in equity fund you get in third working day. So it should what should be your investment should do, it should provide asset allocation. Asset allocation, proper asset allocation is like a balanced थाली, जिसमें गोल्ड भी हो, प्रॉपर्टी भी हो, इक्विटी भी हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट्स, सब कुछ हो। Am I clear till now? Any question? No, ma'am. Anyone has any doubt? No. Afterwards, at the end. Okay, fine. तो investments that grow in value, all know property, gold, art collection, equity shares, mutual funds, there are options.
Investment that generate income, bonds, NSC, National Savings Certificate, Kisan Vikas Patra, Public Provident Fund, of course. It provides rate of interest is around 7%, and bank and company deposits. So are you investing in the right assets? Anyone who would like to answer? Due to market volatility, it may be right today but wrong tomorrow, I think. मार्केट वॉलेटिलिटी इफ यू इन्वेस्टिंग फॉर शॉर्ट टर्म तो वॉलेटिलिटी मैटर करता है. स्पेकुलेशन अगर कर रहे हो तो मैटर करता है. इफ यू आर एन इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी डजेंट मैटर, क्योंकि मैंने अभी अपने 11 इयर्स के एक्सपीरियंस में देखा है जिसका फंड मतलब रिटर्न नहीं बन रहा, अचानक ऐसा रिटर्न बना तो इट मीन्स वॉलेटिलिटी को बीट कर देता है इंडियन मार्केट. तो नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स. तो व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड? ए म्यूचुअल फंड इनमें एक ट्रस्ट है, दो सेविंग्स ऑफ ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स का पूल करता है. तो एनीबॉडी विथ एज लिटिल एज फ्यू हंड्रेड रुपीज, कोई अगर मुझे पूछेगा मैं इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट से स्टार्ट करूं, आप 100 रुपीज से भी एक SIP स्टार्ट कर सकते हो, एज लो एज 100 रुपीज. एंड it is collected by professional manager in and it is invested in different types of securities. तो कुछ लोग आते हैं मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है बट आई डोंट हैव नॉलेज, देन व्हाई डोंट यू गो फॉर म्यूचुअल फंड? बिकॉज म्यूचुअल फंड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इटसेल्फ. सो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बॉन्ड भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द फंड यू चूज. इट कैन बी डेट, इक्विटी. आई विल बी दूसरे स्लाइड में मैं टाइप्स ऑफ फंड डिस्कस करूंगी. इसमें जस्ट म्यूचुअल फंड गिव्स मार्केट रिटर्न एंड नॉट एश्योर्ड रिटर्न्स. हाँ, मार्केट FD के जैसे म्यूचुअल फंड में आई कांट एश्योर यू विल गेट this % रिटर्न, बट इट बीट्स मार्केट, इट बीट्स FD रिटर्न ओवर टाइम. Investment in mutual fund is the most cost efficient and it offers the lowest charge to the investors. So how does the mutual fund works? Fund manager pools the money from the investors और वो इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स और सिक्योरिटीज में. तो ही हेल्प जनरेट रिटर्न और वो रिटर्न किसको डिलीवर होता है? इन्वेस्टर. इन्वेस्टर का पैसा फंड मैनेजर मैनेज किया, स्टॉक सिक्योरिटीज उसने सिलेक्ट किए, उसका हेडेक, अल्टीमेटली रिटर्न गोज टू द इन्वेस्टर्स. गुड. तो as per SEBI guideline on categorization and rationalization of schemes, mutual funds are classified as equity schemes, debt schemes, hybrid schemes, solution oriented schemes. तो क्या होता है ना, there are around 4,000 schemes in mutual funds involved. और कभी कभी कुछ क्लाइंट्स आते हैं वो बोलते हैं मेरे पास SIP है बट दे रियली डोंट नो इट इज डेट फंड और इक्विटी फंड. अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग इन डेट फंड? इट शुड बी इक्विटी ऑफ कोर्स. तो अंडर इक्विटी कैटेगरी देयर इज लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स. तो लार्ज कैप बेसिकली टॉप 100 कंपनीज, देन 101 to 250 मिड कैप के बाद स्मॉल कैप, इट्स बिलो 250 कंपनीज. And under hybrid debt, there are again category of fund. तो मैं कैटेगरी ऑफ फंड का एक स्लाइड है. और तो अकॉर्डिंग टू द रिस्क एपेटाइट, अगर आपका रिस्क हायर रिस्क है, हायर रिटर्न है, देन आई विल सजेस्ट इक्विटी स्कीम्स. इफ योर रिस्क एपेटाइट इज मॉडरेट देन यू विल कैन गो फॉर हाइब्रिड स्कीम्स. हाइब्रिड स्कीम्स में क्या होता है ना, डेट और इक्विटी का मिक्सचर होता है. एंड लो मॉडरेट रिस्क, लो मॉडरेट रिटर्न, जो एकदम कभी भी म्यूचुअल फंड में नहीं आया एंड बहुत डर रहे हैं तो बेटर डेट स्कीम्स आर देयर. And very low risk, lower returns than pure liquid schemes. कोई पैसा पार्क करते हैं सिर्फ 1 to 3 months के लिए, तो liquid schemes are better option for them. So just I said ना, overnight funds are also there. कभी कभी क्या होता है ना, किसी को पार्क करना है बस 2-3 दिन के लिए, बट इफ अब करंट अकाउंट में अगर किसी का पैसा रहता है तो दे अर्न रिटर्न रेट ऑफ interest is zero in current account, so better keep in overnight fund की कुछ तो generate हो ही जाएगा ना. Then liquid funds, liquid fund generally 1 month का period में liquid fund हम लोग कर सकते हैं. Ultra short is for 3 months, 3 months से थोड़ा ज्यादा. Short term fund is for 6 months.
देन मतलब टिल 1 year वी कैन गो फॉर दैट स्कीम्स. अगर 1 से 3 साल का होराइजन है, देन वी कैन गो फॉर इक्विटी सेविंग्स फंड और ए एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी, जिसमें क्या होता है ना, आपका डेट गोल्ड इक्विटी तीनों रहता है. 10% गोल्ड में है, 10% डेट है और बाकी इक्विटी है. एंड लार्ज कैप फंड्स आर मोर सिक्योर्ड क्योंकि टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है. एंड इफ द horizon time period is 3 to 5 years, then we can go for diversified funds like multi cap, flexi cap. And mid cap fund, I will suggest for longer period because volatility is more in this fund. And sectoral fund, my favorite. Sectoral fund क्या होता है ना, some people आर देयर कि मुझे बहुत रिस्क लेना है, मुझे रिटर्न बहुत ज्यादा चाहिए. दैट अमाउंट आई कैन इन्वेस्ट इन सेक्टरल फंड. एंड बिलीव मी, सेक्टरल फंड, सम ऑफ द सेक्टरल फंड परफॉर्म सो अमेजिंगली. क्या हुआ, अभी लास्ट पीएसयू का फंड आया. पीएसयू का फंड 2 साल में डबल हो गया. लेकिन क्या होता है ना, सेक्टरल फंड में हम लोग भी एज ए एडवाइजर वी ऑल्सो सजेस्ट कि हाँ कुछ पोर्शन आप रखिए, लेकिन ज्यादा अमाउंट वी डोंट सजेस्ट क्योंकि बहुत रिस्क इन्वॉल्व है. But sectoral funds like manufacturing, innovation, coming days में they were going to be a fantastic one. Am I clear till now? Yes, very much clear. Yes. So why invest in mutual funds? तो आप मंगला जी जैसे बोल रही थी कि आप बैंक में रखते हो. वाई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? एक तो म्यूचुअल फंड में आपका लो कॉस्ट है. आपको इवन बैंक जाने के लिए आपको फेयर ऑटो कुछ तो लेना पड़ता है. म्यूचुअल फंड में आप घर बैठे इन्वेस्ट कर सकते हो, लो कॉस्ट. एंड यू कैन इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट, 100 रुपीज से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. इट इज मैनेज प्रोफेशनली. रिस्क इज डाइवर्सिफाइड. आपके रिस्क के हिसाब से आपको फंड दिया जाएगा. अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, देन यू वी विल सजेस्ट इक्विटी फंड. If your risk appetite is low, then definitely hybrid या debt schemes are better for you. It is well regulated by SEBI and there is transparency. Transparency in the sense कि आपने एफडी की है, आपने 1 साल की एफडी कर दी, आपको तो सर्टिफिकेट मिला, आपको तो ये नहीं पता कि आपका नेक्स्ट डे एफडी का अमाउंट कितना है एग्जैक्टली. बट इन म्यूचुअल फंड यू कैन सी द रिटर्न डेली बेसिस. आपके पास ऐप रहेगा, यू कैन सी द डेली परफॉर्मेंस देयर. So modes of investing. It is a lump sum investment. Also we can do additional lump sum. Suppose मैंने 1 लाख का म्यूचुअल फंड खरीदा. एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज, मुझे लगा 1 साल में ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक का मेरा सपोज 1,25,000 1,30,000 ही हो गया, तो मैं उसी में वापस एडिशनल परचेज कर सकती हूँ. और आई सजेस्ट इन स्पाइट ऑफ अलग अलग फंड आप इन्वेस्ट करते हो, आप अगर सेम ही फंड में ना रेगुलर बेसिस पे डाउन अप में आप अगर इन्वेस्ट करते हो कुछ अमाउंट लाइक एडिशनल परचेज, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. एंड systematic investment plan, as I said about SIP. Systematic transfer plan, anyone who knows about STP? हमारे fund can be switched from for a same fund house, fund can be switched from one particular fund to another within the same fund house. That I have done, but I am not very sure whether it can be done across the AMCs. No, it STP can't be done across the AMCs. ये सेम AMC में ही STP अलाउड है. तो एसटीपी में क्या होता है ना, अगर सपोज आज मार्केट बहुत हाई है लेकिन मैं इन्वेस्टर के मुझे स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है, तो अभी इतने हाई मार्केट में मैं अगर एसटीपी उसके अगर उसको डायरेक्ट इक्विटी में दे दूं, कल को मार्केट डाउन हुआ तो उसका अमाउंट जल्दी गिरेगा. तो व्हाई डोंट वी गिव एसटीपी? एसटीपी कैन बी वीकली, मंथली, डेली, डिपेंडिंग अपन द इन्वेस्टर्स जैसे चाहते हैं. तो एसटीपी में क्या होता है ना, देयर इज ऑल्सो ए बूस्टर एसटीपी. बूस्टर एसटीपी क्या करता है, जब मार्केट ज्यादा डाउन है तो ज्यादा अमाउंट आपका इक्विटी में जा रहा है, तो यू आर गेटिंग मोर यूनिट्स. एंड व्हेन इट इज अप इट गेट्स, मतलब फिक्स अमाउंट आपने सेट कर दिया, सपोज 25,000 वीकली जा रहा है. इन बूस्टर एसटीपी क्या होगा, जिस दिन मार्केट डाउन होगा आपका 40,000 तक भी चला जाएगा. तो वो
इंटू 8x 10x आप जो सिलेक्ट करोगे उसी मोड में चला जाएगा. एंड इन स्पाइट ऑफ इन्वेस्टिंग डायरेक्टली जब मार्केट अप हो, आई सजेस्ट 3 to 6 months STP is a good option. एंड देयर इज ऑल्सो ऑप्शन फॉर इंटर स्कीम स्विच. क्या होता है ना, कोई अमाउंट इन्वेस्ट आपका 1-2 महीना के, आपको लगा कि मुझे 2-3 महीना बाद पैसा चाहिएगा, तो आपने डेथ स्कीम में इन्वेस्ट किया. फिर आपको लगा कि 2-3 महीना बाद मुझे तो ये अमाउंट चाहिए ही नहीं, तो वी कैन शिफ्ट फ्रॉम दैट टू इक्विटी. एम आई क्लियर? Yes. So basically what is SIP? In spite of investing directly into म्यूचुअल फंड, मतलब लमसम करने की जगह हम लोग एक रेगुलर इंटरवल म्यूचुअल फंड स्कीम में हर महीना हम लोग कर सकते हैं. हर महीना ही क्यों, हम लोग डेली एसआईपी भी कर सकते हैं. तो इट इज लाइक ए रेकरिंग डिपॉजिट, बट रेकरिंग से ज्यादा अच्छा कंपाउंडिंग हो जाता है एसआईपी में. एंड इट enables रेगुलर इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी एडिशनल पेपर वर्क, क्योंकि हर महीना आपको पोस्ट ऑफिस के जैसे हर महीना आपको डिपॉजिट करने जाना नहीं है. इसमें बस एक ओटीएम मैंडेट फॉर्म साइन होता है. हर मंथ आपका अकाउंट से आप अमाउंट चला जाता है इसमें. तो it is a convenient way to invest regularly through one-time standing instruction, convenience of small installments और rupee cost averaging. आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, आपने आज मार्केट आप में 85,000 जब सेंसेक्स था ना, जिसका फंड था, कुछ कुछ फंड अब भी एट पार आए, तो बहुत हाई में परचेज हुआ. बट उस टाइम से जो एसआईपी चल रही है, दे डिडंट गेट इफेक्टेड एट ऑल, बिकॉज उनका क्या हो रहा है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो रहा है, वॉलिटिलिटी को पूरा मीट कर रहा है. एंड नो टाइमिंग द मार्केट, इट इज अ डिसिप्लिन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. So it is no timing the market applies in SIP. So power of compounding. So आज suppose 10,000 इन्वेस्टमेंट पर मंथ, एक नॉमिनल रेट 12%, 12 से ज्यादा ही होता है लेकिन मैं मिनिमम पकड़ के 12% पर एनम के हिसाब से दिखा रही हूँ, till the age of 60. Suppose someone has started his SIP at the age of 25, तो उसने 35 years इन्वेस्ट किया, 35 years में उसने 42 लाख इन्वेस्ट किया, तो उसका वैल्यू इट विल बी अराउंड 5,51,00,000. ठीक है. और सपोज 5 years बाद किसी ने एसआईपी स्टार्ट किया, तो उसका अमाउंट 36 लाख हुआ. तो आप इसमें देखिए वैल्यूएशन में 2 करोड़ का डिफरेंस, तो इट इज द डिफरेंस. सो वी शुड स्टार्ट अर्ली. जो स्टार्ट 25 साल में जिसने स्टार्ट किया है उसका 5 करोड़ का कॉर्पस हो रहा है, वही 5 साल बाद जिसने स्टार्ट किया है उसका कॉर्पस इज अराउंड 3 करोड़. और आफ्टर 5 years जो स्टार्ट कर रहा है, हिज इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल बी ₹30 lakhs एंड हिज अमाउंट विल बी 1,70,00,000. और उसके बाद जो सिर्फ 40 साल में, मतलब 20 साल ही उसके पास है रिटायरमेंट के लिए, जो 40 साल में कर रहा है, तो 24 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, तो इट विल बी अराउंड 92 lakhs. तो द सूनर यू स्टार्ट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन एसआईपी. सो कैन वी गो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, yes. Yes. रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे एसआईपी में काउंट होता है, उसके लिए एवरीवन ऑफ यू नो अबाउट नैव, नेट एसेट वैल्यू. Yeah. Net asset value, like just for a recap, net asset value is the market value of the fund less liabilities and expenses divided by the number of units for the firm. So NAV is important as it is the basis for valuing an investor's holding of units in mutual fund. तो NAV अगर आपको जानना हो ना, it is published daily on एमपीज वेबसाइट, म्यूचुअल फंड वेबसाइट एंड लीडिंग न्यूज़पेपर. वहां भी आप NAV जान सकते हो. तो क्या होता है ना, अगर कोई फर्स्ट मंथ में 10,000 की जिसकी एसआईपी चल रही थी, उसको NAV अराउंड, ये राइट साइड ऑफ द एक्सेल इज अबाउट फॉलिंग मार्केट्स एंड लेफ्ट साइड इज राइजिंग मार्केट. तो राइजिंग मार्केट में क्या हो रहा है ना, जब 10 रुपीज का NAV है तो उसको यूनिट्स कितना मिल रहा है, 1,000. 10.5, 10 ही इज गेटिंग 952 यूनिट्स. 12 रुपया NAV में 833. तो ऐसे करके जब 6 मंथ्स का ना उसने NAV कैलकुलेट किया, तो 60,000 पे NAV आ रहा है 81.5 और यूनिट्स एलोटेड इतना आ रहा है. तो उस दिन अगर आप एवरेज परचेज NAV देखो तो 13.58.
लेकिन अगर आपने डायरेक्ट परचेज किया होता तो कॉस्ट पर यूनिट आता 12 रुपया। तो आपका ये फायदा हो गया एसआईपी में। तो एसआईपी क्या करता है ना, एवरेजिंग करके आपको हर महीना का फायदा दे देता है। अगर फॉलिंग मार्केट में कोई इन्वेस्ट करता है, देन व्हाट हैपेंस, हिज यूनिट्स, ऑब्वियसली यूनिट्स, जब फॉलिंग मार्केट्स में उसको यूनिट्स एलोकेशन कम मिल रहा है, 1000 था, देन 952, 9.75 जब नैव हुआ, 9 जब नैव हुआ, ही गॉट यूनिट्स, लेसर यूनिट्स। तो ऐसे करके उसको टोटल यूनिट्स मिला 5611। तो इसमें भी क्या हो रहा है ना, दो फॉलिंग मार्केट्स में भी उसकी एसआईपी गई, लेकिन ओवरऑल हिज परचेज एनएबी इज मोर देन ₹10, स्टिल ही इज बेनिफिटिंग। तो क्या होता है ना, एसआईपी के केस में एकदम वर्स्ट सिचुएशन, कोविड वगैरह, पैंडमिक आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज आप इतनी जल्दी ना नेगेटिविटी नहीं देखते हो अपने पोर्टफोलियो में। A very important topic. It is nomination. Nowadays, SEBI has made it mandatory कि आप नॉमिनी डिटेल्स प्रॉपर फाइल करो, मीन्स पैन कार्ड इज मैंडेटरी, उसका पैन नंबर भी डिटेल्स डालना जरूरी है। तो कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं ना, नॉमिनेशन में इतना कौन फिलअप करेगा, तो नो कर दिया। तो नो करने के चक्कर में इट फेसेस, मेरे को आज कुछ हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो नॉमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर कि नॉमिनी आपका प्रॉपरली डिटेल्स दिया हुआ है इन योर परचेज। एंड नॉमिनेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम और एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आप जितना बार चाहो ना अपना नॉमिनी चेंज कर सकते हो। और अगर नॉमिनेशन नहीं है तो क्या होता है, तो मेरा विल अगर नहीं बना हुआ है तो उसके लिए फिर लेंथी प्रोसीड्योर। और अगर नॉमिनी दिया हुआ है, जस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ केवाईसी प्रोसेस अलोंग विथ प्रूफ ऑफ डेथ, सिग्नेचर, एंड अगर नॉमिनी माइनर है तो उसका प्रूफ ऑफ गार्जियनशिप चाहिएगा। दैट इज द प्रोसेस फॉर नॉमिनी। So this is all from my side. Now I'd like to take questions from your side. Yeah. Can I ask? Yes, yes. Yes, you can ask. See, you said under SIP, if we start early, by 60, we'll get some 5 crores odd. Right. Correct? Yes. Now, if I have 5 crores in hand and this is cash, so why should I go in for insurance? Because today, no matter which scheme it be, all insurance, I'm talking of health scheme, all insurance companies, irrespective of the rest, certain things are not go as deducted. And all health schemes now, if you inquire, they give you only, they 100% deduct 30% of the bill. So is really investing in health insurance worth it when I have so much money? It's worth actually, because in my How much, investment career, madam? How much will the hospital be? कर करके कितना होगा? पूरा, बिकॉज आजकल हेल्थ इंश्योरेंस में एक राइडर है नॉन डिडक्टेबल्स, उसमें आपको हैंड ग्लोव्स का भी मिलता है। और एकदम यकीन मानिए मंगला जी, मैंने अपने क्लाइंट का ही सेटल करवाया, मोर देन 10 क्लेम्स, बहुत हैसल फ्री है और आपको पूरा अमाउंट मिलता है। No, बस ma'am. No, ma'am. मिलता है। No, ma'am. No, ma'am. I'll give you my own experience. I want So to when add you something. calculate like that, if I have 5 crores, I think it's not worth it नहीं, because I अगर just आपके pay. पास 5 करोड़ है, बिकॉज आपका एज वाइज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी हाई हो जाता है, देन डेफिनेटली यू कैन स्टे विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो। Yeah. बट I have given my contact details personally. I will, you can call me personally. I will suggest you कैसे आपको क्लेम मिल सकता है। अगर आपने अपना सारा कुछ डिटेल्स प्रॉपरली फिल किया है तो आपको क्लेम हैसल फ्री मिलेगा। I ensure you. I Okay. want to add something to it. Sure. Recently, I have been myself been an example. Like last year, I met with some health issues, and not even 1 second I have faced issue. Really, I was very lucky that I have done health insurance. Otherwise, I don't know what would have been my situation right now. No, So you should. it depends Huh. on many things. I agree that sometimes you may face issues, but on regular basis, 90 out of 100 cases are very smooth. Not even 1% I am telling that it was above my way, like 2-3 months income, I can say.
So the bill was that much, but not even 1% I faced issue. And they gave you what? How much of reimbursement did you get? 100%, 100%. Oh my God! How lucky you Really. are! How lucky you are! Really. I What? just saw. I had sent mine just 2 months ago, 4 months ago, and 6 months ago, and every time they saw that I got only 50%. Insurance companies are It smart. depends on what type of insurance you have taken. That much, like the one who has done insurance for me, he was very very close to me, so he has covered almost everything, right? Like suppose there may be some dishonest insurance agents, like they Hmm. look there for their benefits. So Hmm, that hmm, thing is little bit important, that Okay. Okay. from whom you are doing, what are the things that are covered. Yeah. Also, the Because sum assured is also irrelevant. yes, yes. So what are the things covered? Like if you are very this skeptical, then you say that premium kam aana chahiye. Then they will remove the important things. Then your premium will be less, but at the time of benefit also you will get less. So that things matter the most. Like I was very okay. Okay, you do. I was just said that he has taken care of everything, and really I got so much of benefit, I can say, Yeah, because but after how many years of payment of premium? मान See, लो if I हाँ start, no, मैं no, ना no, no, मंगला जी, see, इसमें क्या होता है ना, जब फ्रेश एप्पल होता है ना तो सब कोई लेते हैं, लेकिन जब एप्पल सड़ जाता है कोई भी नहीं लेता है। no, तो no, no. सेम इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, तो I'm अगर trying to say if I start in health insurance at 25, at या least till 30, 40, I don't need it. So 15, 20 years you're just paying. Might as well take that and उसमें आप ईयरली एक मेडिकल हेल्थ चेकअप है वो आप ले सकते हो। दैट इज वेरी इफेक्टिव। वो आपके घर से आप जैसा चाहते हो ना, जहां चाहते हो वहीं पे आपका पूरा हेल्थ चेकअप हो जाता है बॉडी। सेकेंडली आपका अमाउंट भी तो बढ़ रहा है ना। सपोज 10 लाख का है, आप बोल रहे हो कोई क्लेम नहीं है, तो वो पॉलिसी 50 लाख की हो जा रही है। दैट इज द बेनिफिट एंड ऑल द एग्जिस्टिंग डिजीज आर कवर्ड। जैसे ही 2 साल होता है तो वेटिंग पीरियड हट जाता है, एंड आफ्टर 3 years प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आर ऑल्सो कवर्ड। okay. Yeah. Thank you. plus no claim bonus is also there, I think. या Like नो if you क्लेम बोनस इज देयर लोकेश। yes, yeah, because I got 2 years no claim bonus, and third year I had to claim everything. Yeah, whatever it is. And one more question, like you told about this STP something या transfer. सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। Yeah, little bit. Can you explain in more details, like what it is, how, what I have to do? Like suppose I'm doing from some agent, then they will see. But from a layman perspective, what I should पेमेंट know? प्रोस्पेक्टिव ना आप क्या कर सकते हो, अगर आप ऐप से कर रहे हो ना, तो आप सपोज आज मार्केट अप है और आपको 10 लाख रुपया लगाना है, तो आपको Hmm. लग रहा है कि मार्केट और यहाँ से गिरने वाला है, तो गिरने वाला है तो यू कैन बेनिफिट मोर फ्रॉम द मार्केट। तो आप 10 लाख है ना, पार्किंग जो है डेथ स्कीम में किया, आपने डेथ स्कीम में आपने 10 लाख किया, उसके बाद आपने वीकली एसटीपी लगा दी है। सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप फंड, तो लार्ज कैप में अगर एसटीपी लगाइए, अगर आप डेली एसटीपी लगाओगे, अगर आपने फिक्स्ड कर दिया है कि ये 10 लाख में से 25,000 जाना है, तो इट विल गो 25,000। लेकिन आप बूस्टर एसटीपी भी लगा सकते हो। बूस्टर एसटीपी में क्या होता है, सपोज आज मार्केट ज्यादा गिरा है तो इतना टाइम्स गिरने से इतना टाइम ज्यादा जाए, मतलब इन स्पाइट ऑफ 25,000 इट कैन गो टू 50,000। तो वो करके Flexibility. आपका मार्केट में अमाउंट जा रहा है। इट्स लाइक एसआईपी, इट्स वर्किंग, थोड़ा एवरेजिंग हो जाता है और मार्केट वॉलिटिलिटी को हिट करने से भी बचा रहा है। Okay. Okay. That Plus, is, there was one question, like earlier it was very simple, mutual fund, but today there are so many schemes. या देयर आर So सो मेनी स्कीम्स। और we क्या can. होता है ना, मतलब मेनी ऑफ माय क्लाइंट्स आर सच कि हाँ, मैंने देखा ऐप पे ये पास 1 साल में ये फंड परफॉर्म कर रहा है, तो मैंने ये सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैम देखिए ना अभी भी नेगेटिव है। अरे वो फंड कर रहा है, लेकिन आपको कितने टाइम के लिए करना है, कौन सा फंड करना है, वो भी तो आप देखोगे ना। तो इट्स रॉन्ग वर्ड्स। सब कितने तो इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है उनका फंड इक्विटी स्कीम में जा रहा है, हाइब्रिड में जा रहा है या डेट स्कीम में जा रहा है। बस हाँ, एसआईपी करना सही है, बस करनी चाहिए बोल के कर रहे हैं। Wait, that knowledge was important, that we should know about our fund, where it is going. या वी शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द फंड। Yeah.
Earlier it was very simple SIP, but today there are so many options. Even professionals get confused ki what is going, and like it has become like stock only that we have to see every day which is हाँ, better, which because is. more than 4,000 plus funds are working और अभी भी नए AMCs आ रहे हैं. कभी मेरे पास कोई AMC का फोन आता है एम्पेनलमेंट के लिए, आज ये नई AMC आई है, बहुत AMCs आ रही है. प्रदीप्ता जी. Yeah. Yes, ma'am. हाँ. One question regarding that Mediclaim policy. Now, Okay. see, I am in the service. हम्म. So, my company, through my company, there is one Mediclaim policy. Okay, fine. Now, that is around, sum assured is around 6 lakhs. Now, I have a policy of my own as well. And that policy I have taken long back in 2008 or 9. Okay. But that was in a government sector. I mean, national insurance. Okay. Now, at that point of time, my sum assured was around 2 lakhs, and now it has increased to, because of no claim bonus, it has increased to around 3 lakhs, what I have last updated. Okay. But tell me one thing, can I switch from this company to other? Because I think there are not much facility in my personal Mediclaim नेशनलाइज that I am कंपनी having में with. बस, हाँ, मतलब कैशलेस हॉस्पिटल्स का टाई अप थोड़ा कम है. को पेमेंट भी आपका होगा उस पॉलिसी में. Mhm. तो आपकी पॉलिसी कितने साल पुरानी है? ये मैम 2008 का होगा ये. दैट इज अगर क्वाइट आपकी ओल्ड. पॉलिसी 2008 से है ना, तो आई विल नॉट सजेस्ट इन पोर्टिंग योर पॉलिसी. आप उस अच्छा. पॉलिसी को कंटिन्यू रखिए. आप एक पॉलिसी ऐसा रखिए विथ डिडक्टेबल. आज के डेट पे ना आप हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा भी ले सकते हो कि फर्स्ट 2 लाख आपका दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हुआ और हम्म. बाकी इस कंपनी से कवर हुआ. तो यू कैन टेक दैट पॉलिसी. क्या होता है ना, अभी पुराना पॉलिसी है, अगर आप उसको पोर्ट करोगे तो नया कोई भी नई जगह कोई ज्वाइन करता है तो उसके बहुत संदेह से देखा जाता है. तो दैट विल बी अप्लाइंग फॉर यू. तो वो अच्छा. पुराना पॉलिसी में ना आपने वो ट्रस्ट बिल्डअप कर दिया है. कभी भी क्लेम हो तो उसमें हैसल फ्री होगा. नो डाउट कि उन लोग का क्लेम थोड़ा कोपेमेंट एंड ये आपका पेपर वर्क इन्वॉल्व होगा. बट आई सजेस्ट कि उसको आप कंटिन्यू रखिए. एंड यू शुड हैव ए गुड पॉलिसी ऑल्सो. That is what I think. Acha, one more thing, that is I am close to 50 now. I'm 48. So I ओके. think if I going to take a new policy, then it will be costly, I suppose. हाँ, आपका प्रीमियम तो हाई होगा. Hmm. That is another thing. Okay, I Invest will in get in touch with invest you. in stocks and make the money, sir. Why do you want to go after that health scheme? You people are intelligent. You all know how to multiply money. That is fine, but still. No, there's no but still. Just stick to it. Many times more it will grow. Imagine you invest and you'll get 1 crore. Do you need health insurance? You don't need. It's a fear psychosis, actually. Yeah, so get out of the fear. So That's right. simple. Thank you. Any more questions? No, Yeah. it was very well explained and we enjoyed it, ma'am. Yes. Thank you so Anyone much. has any more doubts? No. Yes, the doubt is now पैसे कहाँ से लाने के? No. That was just in lighter mode. That's okay. I would like to add here, Lokesh, can we see your face? Yes. Yeah, a big round of applause for him. He is doing a wonderful job. Yes, Lokesh sir is doing. Yes. No, it's okay. Keep it Yes, up. sir, come on screen. Let's see. Yes, Then we can clap for screen you. is on. No, it's We'll clap. okay. No, it's not okay. Why okay? Why okay? Where is it, sir? You have to stop the screen share. Yeah, wait. Yeah. Yeah, now. There. Congrats, sir, for a good job. So, Really. everyone can. And Did let's you clap. know- 1, 2, 3. Chalo. Sir, clap. Thank Yes, you so sir. much. Thank you so much, everyone. Yeah, we and can he's take very one photo. polite and he's very nice, Yes. He's very accommodative also. For No. Lokesh, I would like to add, he's like my small brother only. Oh, why don't you have
picture screen, na? Tap Yeah, that button. You'll get a anyone? better. But tell everybody to come on screen and then Yes, give us. everybody, we can take one picture. Yeah. Please come on screen. Yeah. Please come on screen, everybody. And with a smile. I think we have to take from mobile. No, sir. You can take here there on your on the board you have no PRTSCR next to Where F12 next to F12. Oh, If you print press screen. that, you'll get the screen. Okay. Yes. Yes. Now don't ask me where it goes, but you can. That's the way you do it. Thank you so much, everyone, for joining. It was a wonderful session. Yeah. Hope you Thank you so all much. So Thank you. you are in the group already. You can share your details. Like if there be anybody who wants to connect further, if you have any queries or anytime, like Okay, I will definitely share it. yes. Okay. Anyone has any doubt? Final. We will No. wind up the class. It was wonderful. We enjoyed. No, Thank no. you. Okay. Okay. Thank Thank you, you. Lokesh sir. Special thanks to you. Thank you. Bye. Thank you so Bye. much. Bye. 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 Thank you so much, everyone. Yeah.